नागवती के विरह वर्णन में क्या करते हैं शुक्ल जी? वो कहते हैं कि बड़ा उज्जवल है ये कविता, बहुत उज्जवल है और सबसे बेहतरीन चीज अगर कुछ है तो वो नागवती का विरह वर्णन है। इसलिए जबकि वो एक बार ये सवाल नहीं करते कि ठीक उसके पहले जोगी खंड लगा हुआ है, जिस जोगी खंड में कहता है इसमें तुम प्रियामतिहीन तुम्हारी मूरख सो जो मत घर नारी राघव सम सीता जो लाई रावण हरि कौन सी रिपाही। वो जोगी होके जा रहा है, कह रहा है कि मुझे तो अब योग और भोग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक दूसरी स्त्री के लिए जा रहा है और वो कहती है कि मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की और एक सूखे के लिए तुम मेरी जान ले लोगे। ये जो सवाल है पूरे मध्यकाल में, एक स्त्री का सवाल, जो कहते हैं कि स्त्री का सवाल नहीं, स्त्री का जो सवाल है उसका कोई जवाब कहीं नहीं कि आप एक सूखे के लिए मेरी जान ले लोगे। और उसके बाद वो कहता है कि ना 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 ना, जोगी होकर भरभरी भी चला गया था, सैकड़ों उसके पास रानियां थी, अपने वक्षस्थलों से उसके तलवे सहलाती थी, लेकिन उसको चला गया और मैं भी जा रहा हूँ दूसरी स्थिति के लिए। Good afternoon, everyone. I'll be making a joint presentation with Dr. Sandeep Yadav. He, of course, is too busy, so I just hope that he agrees with my observations. The title of my paper is Restitching Conventions, a Reconciliation of Mystic Bhakti Literalism and Modernism in Kabir. From the medieval to the globalized era, Kabir has managed to excel the realms of discourse through the many translations that have written and rewritten his works in different socio-political contexts. These translations have contributed to an afterlife that Kabir enjoys in different languages. His translations range from those undertaken for Oriental projects to propagate Christianity, and more recently in the globalized context of liberal humanism. In view of these, the paper will examine the adapted secular cult of Kabir that served the purpose of supreme truth, and how his pluralistic knowledge of free-thinking religious expressionism can become a spontaneous philosophy of happy life in modern times. Most forewords to Kabir start with a conspicuous speculation on his birth, parentage, family, and so on. The mystery surrounding his bearing contributes to the immense diversity of view, which is a true honor to the quest of absolute truth propounded by him. The birth, death, family, and life of Kabir are widely contested, but if one moves beyond these versions, one can hardly doubt that his life is a performance of all that he preached. His daring nature, personality, ethics graciously integrates the knowledge of Brahma Gyan. Ab mein paibo re paibo Brahma Gyan, सहज समाधि सुख में रहो, कोटि कलप विश्राम, गुर कृपाल कृपा जब कीन्हे, हृदय कवल विगासा, भाग ब्रह्म दसो दिस सुइया, परम ज्योति प्रकाशा. Kabir's life is a testimony to the pursuit of Brahma Gyan. He justified the need to reconsider established myth and practiced it by moving to Maghar, place associated with cursed birth. Kabir's ability to live by example offers an innovative ideology and knowledge that focuses on inhaling values rather than merely exhaling them. The important truths of life should be carried on consciously and unconsciously in order to progressively structure social evolution. He refashioned the culture of questioning to arrive at a new religious and philosophical human order much before the word epiphany gained currency through the works of James Joyce. Kabir had already manifested the spiritual recognition as an initiation of enlightenment that one could achieve in life rather than wait for life beyond death. Mala ferat jug bhaya, fira na man ka fer, kar ka man ka dar de, man ka fer. From invoking and bonding with the inner self, he progressed to social practices and in an impressive style gave a scathing critique of meaningless rites and performances, including celibacy. In his empirical study of social religious practices, Kabir realized that the social structure of India had deranged under the doldrums of fear,
anxiety, and despair. In such times, he focused on integration of human values, and in the same breath, he condemned both authoritarian preachers of Hindu and Muslim sects. Similarly, in propagating religion of love, he challenged and refuted all sorts of miracles, astrology, numerology, talisman, supernatural phenomena, and advocated cause and effect relationship, much before Emile Zola founded the theory of naturalism. He sidelined symbolic and supernatural assumptions. Kabir's wisdom from profound understanding of human mind and self-knowledge underscores his lack of professional education and knowledge of scriptures. His challenge to popular understanding surpasses even the widely acclaimed Marxist knowledge based on capacity and ability of individual. Without self-recognition, the reformist need of socialism based on physical capability seems amateurish in front of Kabir-esque spiritual socialism. Seal santosh sada samdrishti, rehni gehni mein pura, taake daras param bhay bhaje, hoi kale sab dura. The voice of Kabir differed from contemporaries, for he never catered to dominant expectations and readily fused different, even marginal strands of belief to arrive at human religion. His natural aversion to affectation, pretension, and ostentation led to a simplistic philosophy to avoid conflicts and disputes. He recommended speaking words steeped in love, which will purge the heart of violent thoughts and results in harmony and peace. This philosophy is truly exemplified by his love and respect for ordinary life. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए और उनको शीतल करे आपनु शीतल होए. Going back to where I started, the many translations and versions of Kabir call him Avatar, Sant Kabir, Kabir Sahib, Peer, Bhagat, Pantheist, Nirguni, Advaitist, Vaishnav, Transcendentalist, and even Indian Luther. East, west, south, or north, Kabir has managed to awaken immense fascination in his vision of spirituality. Thus, son of vision, his determination to coalesce religious and secular dualities and to transport monolithic tradition to mystic polyphonic practices becomes imperative in the modern world thriving on divisive politics. The simple human qualities that contribute to harmonize the individual and social development simultaneously is the hallmark of his philosophy and need of the hour. With his feet firmly placed on the ground, Kabir's creative and cognitive flight offers a visionary reconsideration of existence that can enormously influence the modernist thought and lifestyle. Thank you. Thank you, Dr. शुक्रिया। क्योंकि समय बहुत कम है और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में मुझे लगता है कि सबसे इस पूरे संगोष्ठी का मतलब यही है कि एक पुराना विषय उस पर कुछ नए सवाल हमारे सामने आए, उन पर चर्चा हो, बहस हो, और ये जैसे आज के संदर्भ में उसका पुनर्पाठ किया जा सके। सवाल ये है कि अगर उसमें भी विषय भक्ति आंदोलन है तो हमारे सामने जहाँ से बात राजकुमार जी ने उस संदर्भ को लिया था, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि 5 मिनट में यह पर्चा पढ़ पाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं प्रयास करता हूं कि कुछ बिंदु आपके सामने रखूं। सबसे पहली बात कि हमारे सामने एक विषय के रूप में भक्ति आंदोलन में संत चरिताख्यान, मानवतावाद और जातीय संरचना, कास्ट हेजेमनी का अनुवाद अगर जातीय संरचना किया जाए तो यह कहीं ना कहीं दिक्कत है। हेजेमनी यानी वर्चस्व, जाति का वर्चस्व, उस संरचना में साफ साफ दिखना चाहिए कि उस किस जाति का वर्चस्व था जिसके खिलाफ ये भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ था। दूसरी बात, भक्ति आंदोलन का जितना भी पाठ हमारे पास मिला है वह किस इतिहास लेखन के जरिए मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक संदर्भ यह है कि अभी राजकुमार जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू की थी, क्योंकि समयाभाव है उस पर बहुत नहीं बात की जा सकती, कि जब नागरिक प्रचारी सभा के नेतृत्व में
हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया जा रहा था, तो आधुनिक काल के पहले के सभी तथ्यों के समावेशन के लिए एक टीम बनाई गई, जिसका दस्तावेज आज भी नागरिक प्रचारणी सभा में उपलब्ध है। 16 खंडों में यह इतिहास लिखा गया और उसमें सभी के सभी लोग एक जाति के थे, ब्राह्मण थे, जिन्हें गांव-गांव जाकर के लोकोक्तियों और वहां के लोकानुभवों को संकलित करना था, जहां से वह इतिहास लेखन किया जाना था। यहाँ से सवाल उठाया जाना चाहिए कि भक्ति काल का जो पाठ हमारे सामने मौजूद है, क्या वही पूरा पाठ है जिस पर हम महिमा मंडन किए फिरते हैं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। दूसरी बात, मेरा विषय है भक्ति आंदोलन, भक्तिकालीन सौंदर्य बोध में अंतर्ग्रथित सत्ता संरचना। इसका एक पैराग्राफ जो मैं कहना चाह रहा हूं वो शायद इसमें कंक्लूड हो पाए। भक्तिकालीन काव्य इतिहास के किसी बिंदु पर संभव हुआ भाषिक साहित्यिक कर्म मात्र नहीं कर परवर्ती सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाली आधारभूमि है। यह हमारे बृहत्तर समाज के मूल्यों और सौंदर्य बोध को रचती। इतिहास का यह मोड़ आज एक राजनीतिक भूमि भी बना हुआ है। अतः वर्तमान को समझना इतिहास के इस दौर से अन्योन्य क्रिया द्वारा अंतर संबंधित है। विचार विमर्श भक्तिकालीन काव्य के मूल्यगत पक्ष पर ही जोर देते हैं, जो सायास अनायास पूर्वाग्रहों पर भी आच्छादित है। सौंदर्य बोध मूल्य बोध का पूर्ववर्ती होता है। नए मूल्य किसी समाज में रूढ़ सौंदर्य बोध को स्थापित करते हैं और बदलते भी। अब सवाल यह उठना चाहिए कि जिस समय भक्ति आंदोलन के कवि जिन सवालों को उठा रहे थे, वह उस समय की सत्ता संरचना से किस तरह से प्रभावित होता है। शंकर के अद्वैतवाद के प्रतिरोध के रूप में भक्तिकालीन आचार्यों ने नए दर्शन गढ़े, तमाम रामानुजाचार्य से लेकर के मध्वाचार्य तक। उन दर्शनों के कॉन्टेक्स्ट में जब भक्ति आंदोलन की कवि कबीर से लेकर के रचना शुरू करते हैं, तो वहां का स्वर भक्ति आंदोलन के अंतिम कवि तुलसीदास के स्वर से किस तरह से संबद्ध होगा। हम ये कहते हैं कि जब भक्ति आंदोलन तमाम प्रकार की संरचनाओं के खिलाफ सवाल उठाता है, तब हम कुछ और कोट करते हैं। जब हमें कुछ छिपाना होता है तो हम कुछ और कोट करते हैं। ये चुनने की प्रक्रिया हिंदी आलोचना और इतिहास लेखन और 2016 में हो रहे सेमिनारों तक में जारी होती है कि जब हमने एक विषय चुना, उसके उदाहरण हम फिट करते जाते हैं। मसलन कबीर पर बात होती है, कबीर ने वर्ण आश्रम व्यवस्था और जाति व्यवस्था के खिलाफ मुखर होकर के लिखा। अभी एक भाई ने पर्चा पढ़ा कि कबीर के जाति को लेकर के चयन की बात हो रही है, कबीर के जाति के थे। सवाल यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जिस समाज में हैं, वहां की हकीकतों को छुपाने के लिए कई बार ऐसे बड़े बड़े मूल्य स्थापित किए जाते हैं। भाषा के प्रयोग के माध्यम से जो सत्ता की राजनीति है, उस हेजिमनी को क्रिएट किया जाता है। जैसे यहाँ एक शब्द है मानवतावाद। अब सवाल यह उठना चाहिए कि भक्तिकालीन कवियों का मानवतावाद कहां तक संभव हो पाएगा जब तक वह जातीय संरचना को सीधे सीधे खारिज नहीं करेंगे। कबीर और निर्गुण संत कवियों ने उस जातीय संरचना को खारिज किया। रैदास, कबीर, इन लोगों के यहाँ सीधे सीधे जातियों पर प्रहार किया गया। तुलसीदास के यहाँ प्रहार नहीं मिलेगा। सूरदास के यहाँ यह सवाल ही नहीं मिलेगा। जायसी, कुतुबन, मंजन, ये सारे सवाल गायब हैं। भक्ति केंद्र में जब सवाल ये है कि रामानंद कह गए कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हर का भजन सो हर का होई, तो जाति पात नहीं पूछी जाएगी केवल हरि के सामने, लेकिन राज सत्ता और समाज सत्ता के सामने सबकी जाति रहेगी। यह भक्तिकालीन संत काव्य की या पूरे भक्तिकाल की सीमा है जो तुलसीदास में जगजाहिर होती है। तुलसीदास का रामराज्य वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित रामराज्य, जबकि कबीर का अमर विश्वास और रैदास का बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट इस वर्णाश्रम व्यवस्था को सीधे सीधे खारिज करता है। रैदास पलटू का एक पद है, भली मति हरल तुम्हार पांडे बाबना, सब जातिन में उत्तम तुम ही कर्तव्य करो कसाई, जीव मार के काया पोखो तनिको दर्द न आई, राम नाम सुन जुड़ी आवे पूजो दुर्गा चंडी, लंबा टीका कांच जनेऊ बकुला जात पखंडी। शब्दों पर गौर करिए, यह तीखापन बाद के महाकवि तुलसीदास जैसे लोगों में नहीं दिखेगा। बकरी भेड़ा मछली खायो, काहे जात काहे गाय बराई, रुधिर मास सब एक पांडे थू तोरी बहनाई।
आज भी गाय केंद्रित एक विमर्श हमारे सामने है। यहां से भी भक्ति काल हमें एक दृष्टि देता है। सब घट साहब एक है जानो, यही में भल है तोरा, भगवत गीता पूज विचारो, पलटू करत नहीं हो रहा। तमाम पद है, समय अभाव है, बस मैं अंतिम एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा सवाल ये है कि जैसे ही हिंदी आलोचना या आज के समय में हम भक्ति आंदोलन को पढ़ना शुरू करते हैं, तुरंत हमारे सामने एक बहुत आदर्श सा और बड़े बड़े शब्दों से बड़े बड़े मूल्यों को स्थापित करने का स्वर्णकाल सामने आता है। लेकिन कबीरदास जो जाति व्यवस्था के खिलाफ लिखते हैं, वह महिला विरोधी भी कमेंट लिखते हैं। ये कबीरदास के पद हैं, मैं उनको कोट करना चाहूंगा कि जब कबीर कहते हैं हम कत लोहू तुम कत दूध, पांडे कौन कुमत तो लागी, पूरी जात संरचना पर प्रहार। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने आप को कहते हैं कि नारी की झाई पर अंधा हो भुजंग कबीरत इनकी कौन गति ने नारी के साथ। ये कौन सा विमर्श था जो एक जगह से केंद्रित होकर के क्रांतिकारी और स्वर्णकाल तक जाता है। तुलसीदास में आकर के तमाम पद ऐसे मिलेंगे जहां भक्ति आंदोलन की मूल स्वर भी मिलेंगे, यानी जातिवाद का खंडन, मानवतावाद का, राम राज्य, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म सुरत श्रुत नीति, यानी वह वेदों और शास्त्रों पर आधारित राम राज्य है। मेरा सवाल यही है कि जब हम भक्ति काल को पढ़ते हैं तो क्यों एक बहुत बड़ी संरचना बना लेते हैं कि जाति पर प्रहार किया तो स्वर्णकाल, उसकी सीमाएं स्त्री के पक्ष में दिखती हैं, निर्गुण संत काव्य की, सगुण संत काव्य की सीमाएं उन सभी सवालों को एक्सक्लूड करती हैं जिन्हें रांगे राघव, मुक्तिबोध, राहुल सांकृत्यायन ने उठाया था, जिसे रामविलास शर्मा और पंडित रामचंद्र शुक्ल और जयप्रकाश द्विवेदी जैसे लोगों ने दबाया। तो मेरा सवाल यही है कि जाति आधारित विमर्श और स्त्री को केंद्रित रखते हुए यह क्रांति धर्मा साहित्य क्यों बार बार कटघरे में खड़ा होता है और अपने समय की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक सत्ता संरचनाओं के खिलाफ परिवर्तनकामी भूमिका तक नहीं आता है। और हमारा इतिहास लेखन उसे बार बार स्वर्णकाल साबित करता है। जाते जाते इस पूरे संगोष्ठी का भी यह लक्ष्य है कि हम पुनर्पाठ करें। तो गालिब ने कहा है कि क्या मौज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं श्यामलाल कॉलेज को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा जो विषय है वो है भक्ति आंदोलन और लोक साहित्य। देखिए, कोई साहित्य हो या आंदोलन हो, उसके केंद्र में सदैव लोक रहता है। और यदि वह अपने केंद्र में लोक को लेकर नहीं चलता तो उस साहित्य और आंदोलन की जो सार्थकता है या उद्देश्य है वो सफल नहीं हो पाता। जब हम किसी साहित्य की या आंदोलन की बात करते हैं तो शिष्ट साहित्य या आंदोलन परंपरा से ज्यादा जिक्र करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उसका प्रभाव हमारे देश की समाज लोक संस्कृति में है या नहीं है। तो भक्ति आंदोलन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव हमारे समाज और संस्कृति में बड़ा गहरा प्रभाव है। और भारतीय समाज के अंदर जो लोकगीत है, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं या लोक नाट्य हैं, उसमें भक्ति आंदोलन के तमाम जो निर्गुण संत है, सगुण संत है, उनके काव्य की, उनकी शिक्षाओं का जिक्र अक्सर होता रहता है। और वो केवल भावात्मक रूप से नहीं होता। यदि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हम ये कहें कि रामचरितमानस का हर घर में पाठ, हर हिंदू धर्म के घर में पाठ होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि केवल भावात्मक ढंग से ही उसका पाठ होता है, तार्किक ढंग से भी होता है। वो तमाम जो सवाल हम निर्गुण और सगुण संतों के काव्य को लेकर उठाते रहे शिष्ट साहित्य में, वो गांव का आदमी भी उठाता है। दर्शन जैसे विषय को ले लीजिए, गांव का आदमी दर्शन शास्त्र को क्या समझे, लेकिन सत्संगों में हमेशा सत्कर्म के माध्यम से वो कबीर की शिक्षाओं को कूट करता है। ये बड़ी बात है। वो कबीर को केवल दार्शनिक माध्यम से व्यक्त करता है। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं लोकगीतों के माध्यम से जो मैं आपके समकक्ष रखना चाहूंगा। देखिए, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के समय एक संत हुए थे नामदेव। उनकी एक रचना थी बाजी रची।
बाजी रची में बली ताकि जीनी नी बची, बाजी जामन बाजी मरना बाजी लागी रहो ने मना। उन्होंने कहा कि इस सृष्टि के जो रचयिता है वो एक परमात्मा है, एकेश्वरवाद का उन्होंने प्रतिपादन किया। एक लोकगीत में क्या कहा जा रहा है, जीवन न है तेरा न है मेरा, हर दिन है नया सवेरा, है जीवन की डोर किसी हाथ में, जाएगा नहीं कुछ तेरे साथ में। तो ये सब नामदेव की की जो रचना है उसको वो इस तार्किक ढंग से व्यक्त कर रहा है। सूर साहित्य की अक्सर बात होती है कि सूर का जो साहित्य है या कृष्ण का जो साहित्य है वो रासलीलाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता रहा है, लेकिन ग्रामीण जो स्त्रियां है वो केवल उसको रासलीलाओं के लोक गीतों में जो जगह देती है वो केवल रासलीलाओं के माध्यम से नहीं देखती, वो दूसरे तरीके से व्यक्त करती है। एक लोकगीत में जो ग्रामीण स्त्रियां है वो कह रही है, अरे दही मोरा खैले हो कान्हा, मटका दहिले को फोर, भैया मोर मुकबले हो, मनवा बसेला हो मोर। वो कह रही है कि हमारा दही भी आप खा लेते हो, हमारी मटकी भी फोड़ देते हो और हमारी बाहें भी मरोड़ देते हो, यानी कि चोरी की चोरी और सीना की सीना जोरी। तो ये पुरुष प्रधान जो समाज है उसकी भावना को ये जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो अपने लोक में व्यक्त कर रही है। तुलसीदास की जब बात होती है तो तुलसीदास के यहाँ कर्म प्रधान जो संस्कृति है उसका अक्सर जिक्र किया जाता है, लेकिन हमारे जो कस्बाई और ग्रामीण जो संस्कृति है उसमें कृषि प्रधान संस्कृति के अंदर हमेशा कर्म प्रधानता को महत्व दिया जाता रहा है। और एक महिला है वो अपने भैया से अपने दुखों के बारे में लोकगीतों में कुछ यूं व्यक्त कर रही है, इन दुख भैया मन ही में राखों रे ना। तो कह रही है कि भैया अपने जो दुख है, मेरे जो दुख है वो अपने मन में ही रखना, भैया कर्म लिखा जस भोगवा रहना, मतलब जैसे मेरे कर्म में है वैसा मुझे भोगना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कर्म प्रधानता को वो लेके चल रही है। धन्यवाद।